Hmm. So today is going to be a very important day for your admin training because today we are going to start with the most important topic of your admin training, and that is security. Security is essentially, very, very, very important for every one of us, for everyone, those who are dreaming to be, work like as a system administrator, as a Salesforce administrator. Security is the most important topic. And the things what you are going to learn over here, they are really kind of very important thing. And you I mean, after this whole thing has been over, after the topics what we have completed by this, and you are going to have a practice also, you could probably very easily now you could, and after completing this security, you could very easily say on your resume that you are having more than 2 years of experience. Because the kind of things what we are learning over here, the topics what we are going to cover, they if you start working as a fresher, if you start working as a fresher, so you probably require 2 and more than 2 years to learn this whole topic. So security is that much essential. Now you could understand what is the gravity of this particular topic, and it's going to be a little bit lengthy topic because there are so many things what we are going to cover under this particular topic. Okay, so let me start with this. Let me give you this a little bit of the overview of this topic, security. And here we are, one new thing that with this security overview, one new thing you are going to, you are going to understand a new thing over here. Probably I have one diagram for this. Let me search it out. Mm, yes, I'm going to share everything. I'm going to share this whole diagram into the drive. Probably by today itself, just have this. See, so let me, what really happens, when, for example, if I go to the account object and then, I click new account. And then whenever we wanted to enter, whenever we wanted to create a new account, what we do is that, like, we enter the whatever the fields, whatever the data which is being required into the fields, we just fill the form one by one. And then, we will, after entering this whole detail, whatever is required, what you feel you should enter, you press the save button. Okay. And when you press the save button, what will happen? The record what you have just entered, the value of the fields what you have entered over here is going to be saved inside database. And for example, one new account record is going to be created. Now let's say take this as an assumption key. By entering, the details, we have just created this particular account record. Let's say, let's take this as an assumption. Athena home product naam ka, we have created one of the account record. So how we have done this, we actually have filled this form, we fill this form and then we enter whatever the details which was required over here. And then, after entering whole details, after entering the whole details, whatever, then, like, we save this. And when we save this, what happens? The account record has been created, account record has been created. Now see, तो अभी ये जो आपके सामने है, this is the user interface form. This is what? This is your user interface form. Now see, whenever you hit this save button, so on this form, whatever the fields are there, like parent account name is there, owner is there, parent account number, site type, industry, and then whatever the value you have selected for this, for this field, whatever you have entered over here, the whole data, this whole data is combinedly called as form data, form, user interface form. So whenever you hit this save button, what really happens is that one, in the backend, one new file is created with all those details, whatever you have entered over here. That file, that file is called as form data. So along with all the records, along with this form data, now this has been transferred to the server. This goes to the server. एक जगह पे हमने एक diagram
ये दिस वाज अ डायग्राम, ये हमने काफी पहले पढ़ा था। लेट मी ओपन दिस आल्सो। और मैंने आपसे कहा था कि देखिए एज अ पार्ट ऑफ एडमिन ट्रेनिंग यू विल बी जस्ट डीलिंग विद द फ्रंट एंड पार्ट, मतलब इतना पार्ट यू विल अंडरस्टैंड लाइक हाउ टू क्रिएट द फ्रंट एंड। आपने देखा कि किस तरह से ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करना, यूजर इंटरफेस फॉर्म क्रिएट करना, फॉर्म के ऊपर फील्ड्स क्रिएट करना, राइट। एंड देन सो ऑब्जेक्ट क्रिएट करना वाज एक्चुअली व्हाट वी हैव डन, वी जस्ट हैव इंटरेक्टेड विद द फ्रंट एंड पार्ट। And whenever you are after entering details over here when you hit the save button, तो जैसे ही आप सेव बटन प्रेस करते हो तो सेव के पीछे जो भी बिजनेस लॉजिक काम कर रहा है, कैंसिल के पीछे जो भी बिजनेस लॉजिक काम कर रहा है, no, that business logic is already created, right? Yes. So what I was saying is that I mean, as a part of admin training, what was I mean, we as an administrator we are supposed to do is that we just required to create this front end part. Because for this front end, your business logic class is already being written automatically. And then inside a database, like you created one object called as position with all these fields, with all these fields. So one table with the same name, position, along with all those fields, as a column inside a database has been created. Now, whenever you enter something over here, and you hit the save button. So this whole form data, this whole form data will be, and the values will be transferred from your front end to the back end. Your front end to the back end. एंड और ये क्या हुआ, ये हमारा एडिट लेआउट हो गया, ठीक है। अभी मतलब जब इफ यू गो टू द एडिट लेआउट, जब आप एडिट लेआउट पे होते हो इस तरह से, है ना, दिस इज समथिंग कॉल्ड एज एडिट लेआउट। तो हियर व्हाटएवर यू एंटर्ड, हियर व्हाटएवर यू एंटर एंड यू हिट द सेव बटन। Now, as soon as you hit the save button, अब ये these values are actually being transferred. अब ये जो भी values थी ना, whatever you have entered over here, these value are now transferred to the database. और database में एक नया row create होता है with the ID, with the name, phone, whatever you have entered. और उसी के साथ साथ यही वैल्यू आपको डिस्प्ले होती है वापस यूजर इंटरफेस पे। ये होता है आपका डिटेल लेआउट। दिस इज व्हाट योर डिटेल लेआउट। व्हेन यू कम टू डिटेल लेआउट, अब डिटेल लेआउट पे आते हैं, तो यू सी अभी जो आपने एंटर किया दिस होल वैल्यू, अब ये सारी डिटेल्स कहाँ से आ रही है, डेटाबेस से आ रही है। तो ये जो हमारा बैकएंड में जो प्रोग्राम चल रहा है ना, एज सून एज आई प्रेस दिस सेव बटन, तो ये बैकएंड पे जो काम चल रहा है, दिस होल थिंग, ये पूरा पूरा ऑटोमेटेड है सेल्सफोर्स में। और ये ऐसा इतना सिंपल नहीं होता है बाकी जगहों पे। मतलब यू इफ यू क्रिएट द फ्रंट एंड, तो फ्रंट एंड का फिर आपको बैक एंड भी क्रिएट करना पड़ता है। आपको उसके लिए जावा जावा में कोड्स लिखने पड़ते हैं, या डॉट नेट है तो डॉट नेट में कोड लिखने पड़ते हैं। तो वहां पे कैसे ना, ये भी बनाना पड़ता है अपने को, ये भी बनाना पड़ता है, ये भी बनाना पड़ता है। बट सेल्सफोर्स इकलौती ऐसी टेक्नोलॉजी है जो अपन ये कह सकते हैं कि मोर देन, अगर मैं इसको 35-35-35% में बांटता हूँ, तो आई कुड से दैट कि 35% ही एफर्ट है। रेस्ट ऑफ द 70% या 65% जो है एफर्ट है, यानी क्रिएटिंग अ बिजनेस लॉजिक क्लास, ये सारे बटन वटन के लिए कि सेव करो तो सेव होना चाहिए, रिट्रीव होना चाहिए, कैंसिल होना चाहिए, वो सब अपने आप पहले से लिखा हुआ है। और ये फिर डेटा एक्चुअली जाके हिट होना चाहिए डेटाबेस पे, एक नया आईडी जनरेट होना चाहिए, वहां से रिट्रीव होना चाहिए। तो वो सारी चीजें ऑटोमेटिक हो रही हैं यहाँ पे। ये बहुत बड़ी बात है, पता है, ये सच में बहुत बड़ी बात है। अगर आप थोड़ा भी इसको समझ पाओ तो आपको ये अंदाजा मिल जाएगा कि सेल्सफोर्स कितना हद तक ऑटोमेटेड है। तो जब भी हम व्हेनेवर वी क्रिएट एनी डेटा ओवर हियर एंड व्हेन वी हिट द सेव बटन, तो एक फाइल जनरेट होती है। अब हम मुद्दे की बात पे आते हैं। एक फाइल जनरेट होती है। नाउ दिस फाइल कंटेन्स ऑल योर फॉर्म डेटा। सबसे पहली चीज क्या, फॉर्म। एंड दिस फाइल एक्चुअली गोज टू द सर्वर, database.com पे ये फाइल जाती है। तो अब इस फाइल में क्या क्या रहता है ना, वो कंटेंट हम अभी पढ़ने वाले हैं। बिकॉज ये चीजें तो काफी पुरानी हो चुकी है, अब हम काफी आ चुके हैं ना, हम काफी आगे आ चुके हैं। नाउ व्हाट वी वांटेड टू डिस्कस ओवर हियर, अभी जो पॉइंट है वो क्या चल रहा है अपना, कि whenever if I inside any of the object, if I fill the form and then I hit the save button, now as soon as I press this save button, one file in the backend, one file is generated. That file is actually being transferred to database.com server. तो ये फाइल के कंटेंट क्या होते हैं वो हमको समझना है। इसमें सबसे पहला पॉइंट तो ऑब्वियसली क्या रहेगा, आपका सारा फॉर्म डेटा। मतलब ये फॉर्म के अंदर आपकी जितनी भी फील्ड्स हैं, आईडी का वैल्यू क्या है, नेम का वैल्यू क्या, फोन का वैल्यू क्या है, फैक्स का वैल्यू क्या है, वो सारा। So the first entity
व्हाट वी कुड अज्यूम एटलीस्ट नाउ इज दैट कि सबसे पहली चीज तो यहाँ पे रहेगी आपका फॉर्म डेटा, मतलब जो भी मैंने इस फॉर्म में भरा है, जितनी भी फील्ड्स हैं यहाँ पे ना, जैसे हम अकाउंट ऑब्जेक्ट में देख रहे हैं, यहाँ जितनी भी फील्ड्स है, यहाँ जितनी भी फील्ड्स है, तो ये सारा फील्ड्स का डेटा जो ब्लैंक है वो भी ऑफ कोर्स, ऐसा नहीं कि ये ब्लैंक है तो ये नहीं आएगा, दिस विल आल्सो कम। तो पहली चीज तो होती है आपकी फॉर्म डेटा वो फाइल में, उसके अलावा क्या होता है वो हम देख रहे हैं। सो फर्स्ट थिंग व्हेनेवर वी स्टोर वी एडिट एंड समथिंग, तो वन फाइल इज एक्चुअली जनरेटेड। नाउ दैट फाइल मेनली कंसिस्ट ऑफ 7 थिंग्स, 7 एंटिटीज होती हैं। सबसे पहले होता है आपका फॉर्म डेटा, कि फॉर्म में जो जो एंटिटीज मौजूद हैं, जो जो फील्ड्स मौजूद हैं, उसमें आपने क्या एंटर किया है, ठीक है, वो सारी चीजें। सेकंड होता है आपका सिस्टम का आईपी एड्रेस, मतलब जिस सिस्टम पे आप काम कर रहे हैं, इस सिस्टम का आईपी एड्रेस क्या, ये भी ट्रैक होता है, ठीक है। और ये मैं दिखाने वाला हूँ, डोंट वरी। एक जगह पे आपके हम आगे चल के लॉगिन हिस्ट्रीज डाउनलोड करना सीखेंगे, तो लॉगिन हिस्ट्री क्या होता है, और लॉगिन हिस्ट्री डाउनलोड करने के बाद क्लियर कट समझ में आ जाता है कि क्या क्या ये आईपी एड्रेस क्या था। देन योर सेशन आईडी, हेडर इन्फोस, आपके ब्राउजर का इन्फो, आप कौन सा ब्राउजर यूज कर रहे हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्जन कौन सा है आपका, और आपकी ऑर्गेनाइजेशन आईडी क्या है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन आईडी मतलब ये जो व्हेनेवर वी क्रिएट एनी ऑर्गेनाइजेशन, तो आप सेटअप में जाएं, आपको पता है वैसे तो काफी लोगों को, यू गो टू कंपनी प्रोफाइल एंड देन यू गो टू कंपनी इन्फॉर्मेशन, तो यहाँ पर होता है आपका ऑर्गेनाइजेशन आईडी, एंड देन एवरी ऑर्गेनाइजेशन आईडी ऑलवेज स्टार्ट्स विद 00D। हर ऑर्गेनाइजेशन का जो आईडी होता है दैट ऑलवेज स्टार्ट्स विद 00D, याद रखो, ठीक है। तो इतनी सारी चीजें ट्रांसफर होती है व्हेनेवर यू नो ट्रांसफर वन डेटा टू द डेटाबेस.com। सबसे पहली चीज आपका फॉर्म डेटा, योर आईपी एड्रेस, सेशन आईडी, हेडर इन्फो, ब्राउजर इन्फो, ऑपरेटिंग सिस्टम इन्फो, एंड देन योर ऑर्गेनाइजेशन आईडी, ठीक है। इतना सब कुछ ट्रांसफर होता है। नाउ यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन रेज करना चाहूंगा आप सभी के साथ। तो अभी जैसे कि मान के चलिए कि दिस इज माय अकाउंट रिकॉर्ड, एंड इफ आई गो टू अकाउंट, अब ये तो सबको क्लियर हो गया कि मतलब जो भी हमारे ऑब्जेक्ट हैं फ्रंट एंड पे, जैसे वो पोजीशन है, मतलब कोई भी कस्टम हो या स्टैंडर्ड हो, अकाउंट है, कैंपेन है, जो भी हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं ना फ्रंट एंड पे, हमने जो कुछ भी ऑब्जेक्ट देख रहे हैं, अकाउंट, केसेस, कॉन्टैक्ट, लीड, अपॉर्चुनिटी, जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, दिस ऑल ऑब्जेक्ट्स आर एक्चुअली व्हाट, डेटाबेस टेबल। डेटाबेस में इनके लिए एक टेबल है, और उसका नाम भी सेम ही है। अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट का नाम पोजीशन है, तो टेबल का नाम भी पोजीशन ही होगा। अगर ऑब्जेक्ट का नाम अकाउंट है, तो टेबल का नाम भी क्या है, अकाउंट। इट्स वन एंड सेम थिंग, ठीक है। चलो ये तो सभी को ऑलमोस्ट क्लियर हो चुका है कि हर ऑब्जेक्ट एक्चुअली डेटाबेस में एक टेबल है। डेटाबेस.com पर हर ऑब्जेक्ट क्या है, एक टेबल है। चलो तो अभी नाउ सी, जैसे कि मेरे ऑर्ग में अकाउंट है, ठीक है, और दिस ऑल आर डिटेल्स, ये सारा मेरा अकाउंट का डेटा है। मैं दिस इज माय केस ऑब्जेक्ट, कॉन्टैक्ट ऑब्जेक्ट। अब मैं थोड़ा सा एक क्वेश्चन आप सभी से पूछता हूँ, और आप थोड़ा सा विचार करें इसके ऊपर थोड़ा सा अच्छे से, और फिर मुझे बताओ कि इसका आंसर प्रोबेबली ही सही क्या हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन जो है, दिस इज माय ऑर्गेनाइजेशन, इसमें एक अकाउंट टेबल है, तो क्या ये जैसे डेटाबेस.com पे ये जो टेबल है मेरा अकाउंट टेबल, और आपकी ऑर्गेनाइजेशन में जो आपने क्रिएट किया उसमें भी अकाउंट है, उसमें भी केसेस हैं, उसमें कॉन्टैक्ट्स है ना, तो क्या ये मतलब एक ही टेबल है, या फिर ऐसा है कि मेरे ऑब्जेक्ट के, मेरी और के लिए, मेरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये सारे टेबल अलग हैं, अकाउंट्स अलग है, मेरा अकाउंट अलग है, मेरा अकाउंट का टेबल अलग है, आपके अकाउंट का टेबल अलग है, मेरा केस का टेबल अलग है, आपका केस का टेबल अलग है, मेरे कॉन्टैक्ट का डेटा अलग टेबल में स्टोर हो रहा है, आपके कॉन्टैक्ट का डेटा अलग टेबल में स्टोर हो रहा है, तो आप क्या इसके बारे में आपका ओपिनियन क्या हो सकता है कि क्या सेल्सफोर्स डेटाबेस.com पर बहुत सारे अलग अलग टेबल हैं सभी के लिए, इंडिविजुअल हर एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए, यह सारा डेटा एक ही टेबल में मेंटेन होता है, मतलब एक ही अकाउंट टेबल है जिसमें आपका भी डेटा जा रहा है, मेरा भी डेटा जा रहा है, एक ही कॉन्टैक्ट का टेबल है जहां मेरा जितना डेटा है कॉन्टैक्ट का वो भी वहीं स्टोर होता है, आप लोगों का भी वहीं स्टोर होता है। तो क्या मतलब तुम्हारे ओपिनियन क्या है इसके बारे में, क्या सोच सकते हो तुम? हम्म, बस ओपिनियन ही शेयर करना है, कोई बड़ी बात नहीं बोला मैंने। प्रोबेबली यू गाइस हैव दिस कमांड, आप लोग अनम्यूट कर सकते हो अपने आप को, मैंने कमांड लिया नहीं है वैसे। क्या ओपिनियन हो सकता है? कौन? टेबल अलग अलग रहेगा सर। टेबल अलग अलग रहेगा, ठीक है, ये प्रज्वल का कहना। दिव्या आपका क्या कहना है इस बारे में? Sir, for every standard Yes, object, sir. Yes, हम्म, yes. You can continue. नहीं yeah. नहीं बोलिए ना दिव्या, क्या Yes. बोल रहे So मुझे भी यही लगता है कि there would be different tables for every
फॉर एवरी database. ऑर्गेनाइजेशन, Yeah, राइट? organization. Yes. अच्छा, तो प्रज्वल और दिव्या का तो यही ओपिनियन, बाकी लोग शेयर करेंगे या खामोश बैठे रहेंगे? Sir, for every standard object, there is a single table, sir. And for every custom object, there is just a separate table. संदेश, because you know the answer. Okay, see, संदेश ने क्या बोला, अगर आप लोगों ने गौर किया हो, एक्चुअली बिल्कुल सही Yes. है। अब चलिए हम रीजन पे आते हैं। एक्चुअली बेसिकली होना तो ये चाहिए कि सबके अलग अलग होने चाहिए, लेकिन ऐसा है नहीं, ठीक है ना। चलो, एक बहुत इंटरेस्टिंग, मैंने कहा ना, एक बहुत इंटरेस्टिंग और काफी नई फैक्ट आज आप सीखने वाले हो, और वो ये है कि देखिए database.com, ठीक है, एक यूनिवर्सल डेटाबेस है जहाँ सेल्सफोर्स का सारा डेटा स्टोर होता है, ठीक है। database.com क्या है? ये सेल्सफोर्स का निजी डेटाबेस सर्वर है। हमने काफी पहले जब हमने शुरुआत की थी, तो मैंने आपको कहा था कि अगर आप प्लेटफॉर्म्स की बात करें क्लाउड सर्विसेज की, तो 3 प्लेटफॉर्म्स होते हैं, SaaS, PaaS और IaaS। सेल्सफोर्स आपको तीनों प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, मतलब सेल्सफोर्स SaaS भी प्रोवाइड करता है, PaaS भी प्रोवाइड करता है, एट द सेम टाइम सेल्सफोर्स IaaS भी प्रोवाइड करता है। IaaS क्या होता है? इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। तो इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब ही होता है सर्वर। सर्वर यानी आपके डेटाबेस सर्वर, आपके फाइल सर्वर, आपके वेब सर्वर, है ना, ईमेल सर्वर्स, ऐसे अलग अलग जो कुछ भी आपको रिक्वायर्ड है वो सारा, उसी में से एक पार्ट है database.com, या सर्विसेज का एक पार्ट है database.com। तो database.com क्या है? ये एक यूनिवर्सल प्लेस है जहाँ पे सेल्सफोर्स का डेटा स्टोर होता है। तो इट्स लाइक ये डेटा सेल्सफोर्स का कहीं पर भी हो, वो आके वापस कहाँ स्टोर होगा? database.com पे। और आप जब भी उसे एक्सेस करते हैं, आप, मैं या हम में से कोई भी, सारी दुनिया में कोई भी कहीं से भी एक्सेस करता है, तो वो उसे एक्सेस करता है एक्चुअली फ्रॉम द database.com। चलिए, अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट समझिए। database.com पर जितनी भी स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट्स हैं, जितनी भी स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे अगर मैं यहाँ पे इस वक्त दिखाऊं, तो आपके स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट है अकाउंट, केसेस, कॉन्टैक्ट, लीड, है ना, रिपोर्ट्स, यहाँ तक, यहाँ तक। उसके बाद ये जो है हमारी, ये कस्टम ऑब्जेक्ट है, हायरिंग मैनेजर, पोजीशन, कैंडिडेट। इनकी बात नहीं कर रहा हूँ फिलहाल, इसके बारे में आता हूँ वापस, लेकिन हाँ, फिलहाल जितनी भी स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट्स हैं, जितनी भी स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट्स हैं, उनके लिए एक ही टेबल है। मतलब देयर इज ओनली वन अकाउंट टेबल, there's only one account table, there's only one cases table, there's only one contact table, there's only one lead table, one opportunity, and for every standard object inside database.com, inside database.com, there's only one table। तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि एक ही अकाउंट टेबल है, और फिर चाहे मैं डेटा स्टोर कर रहा हूँ या आप स्टोर कर रहे हैं, ठीक है, हम सभी का डेटा एक ही टेबल में स्टोर हो रहा है। 1 सेकेंड। तो इसका मीनिंग ये होता है कि सारी स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट्स एक ही जगह स्टोर होती है, मतलब अकाउंट, कॉन्टैक्ट, ये सारे एक ही टेबल हैं, ठीक है। तो अगर मैं कुछ डेटा स्टोर कर रहा हूं, तो वो भी उसी टेबल में स्टोर हो रहा है, और अगर आप में से कोई भी स्टोर कर रहा है अकाउंट में, तो वो भी वहीं पर स्टोर हो रहा है। तो आप ये सोच सकते हैं कि वो टेबल फिर कितना इनॉर्मस होगा, मतलब उसका साइज कितना बड़ा होगा, क्योंकि जिसमें सिर्फ हमारी नहीं है ना। अच्छा, उसमें ऐसा भी है कि सिर्फ डेवलपर एडिशन नहीं, सारे एडिशंस, मतलब सारी दुनिया के सारे एडिशंस का डेटा एक ही जगह स्टोर होता है। तो आप समझ सकते हैं कि टेबल का साइज कितना बड़ा होगा। तो फिर इसमें एक बात आती है डेटा इंटीग्रिटी की, कि मतलब जैसे कि हम आपस में सारा एक ही टेबल मेंटेन कर रहे हैं, सेल्सफोर्स एक ही टेबल मेंटेन कर रहा है, तो क्या ये पॉसिबल है कभी कि एक का डेटा दूसरे को, या दूसरे का तीसरे को, या मेरा आपको, आपको मेरे को विजिबल हो जाए? इसको हम डेटा इंटीग्रिटी बोलते हैं। तो ये बिल्कुल भी ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमारा डेटा आपस में एक दूसरे को शेयर हो जाए। तो वो इसलिए नहीं होता क्योंकि देखिए, जैसा मैंने कहा कि जब भी हम कोई डेटा ट्रांसफर करते हैं, तो इन सारी चीजों के साथ, मतलब ये फॉर्म डेटा, ऑपरेटिंग सिस्टम हेडर, सेशन आईडी, सिस्टम आईपी, सबके अलावा एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है ऑर्गेनाइजेशन आईडी। आपकी ऑर्गेनाइजेशन का आईडी भी ट्रांसफर होता है। तो हर ऑर्गेनाइजेशन का आईडी डिफरेंट होता है, अलग होता है। मतलब इसका मतलब ये होता है, फॉर एग्जांपल देखिए, अब यहाँ पे 3 ऑर्गेनाइजेशन है एग्जांपल पे, AP16 एक सर्वर है, और हमने एग्जांपल लिया कि यहाँ पे 3 अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन 1, 2 एंड 3। ये इसका ऑर्गेनाइजेशन आईडी है 00D1234। देन 00D ही रहता है हमेशा स्टार्टिंग में, 2345, 00D3456, लाइक दिस। तो देयर आर 3 डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस। अब ऑर्गेनाइजेशन 1 से, ऑर्गेनाइजेशन नंबर 1 से
3 डेटा निकलता है, ये 3, these 3 values, राम कुमार, सुरेश त्रिपाठी, राजकुमार। तो जब ये डेटा ट्रांसफर होता है और ये सारा अकाउंट में स्टोर हो रहा है, तो अलॉन्ग विद दिस होल वैल्यू, आईडी, अकाउंट आईडी, नेम, जो भी है सारी फील्ड्स का, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ से ट्रांसफर हो रही है वो है इसका ऑर्गेनाइजेशन आईडी। तो ये सारी वैल्यू अकाउंट टेबल में स्टोर हो रही है, साथ साथ क्या स्टोर हो रहा है, ऑर्गेनाइजेशन आईडी 00D1234। सेकेंडली फिर जब यहाँ पे सेकेंड ऑर्गेनाइजेशन जो है 2345 वाला अपना डेटा ट्रांसफर करती है, राकेश कुमार, वो भी उसी टेबल पे जाता है, लेकिन उसका वैल्यू ये है 2345। ये वाला ऑर्गेनाइजेशन जब आता है 3456, तो ये जो दो डेटा जो ट्रांसफर होता है, प्रदीप और सुमन, तो ये फिर अलग स्टोर होता है। और जब ये रिट्रीव होगा तो जिस ऑर्गेनाइजेशन की आईडी है उसको उसी का डेटा मिलेगा, उसका डेटा दूसरे ऑर्गेनाइजेशन को नहीं जा सकता। इसीलिए सेल्सफोर्स मेंटेन करता है ऑर्गेनाइजेशन आईडी का ये कंसेप्ट है। वैसे ऑर्गेनाइजेशन आईडी हमने काफी पहले पढ़ा था, जब हमने एकदम स्टार्ट किया था इसको, तब मैंने आपको बताया था कि नाउ यू क्रिएटेड दिस ऑर्गेनाइजेशन, और आपके ऑर्गेनाइजेशन का आईडी क्या है, तो ये है आपके ऑर्गेनाइजेशन का आईडी। गो टू सेटअप एडमिनिस्टर कंपनी प्रोफाइल एंड इन द कंपनी इन्फॉर्मेशन यू विल केम टू नो अबाउट योर ऑर्गेनाइजेशन आईडी। ये क्या इंपॉर्टेंस है इसका, तो इसका इंपॉर्टेंस ये है, वैसे तो ये आपका यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है, लेकिन जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट पे, स्पेशली स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट पे जब आप डेटा स्टोर करते हो, वैसे कोई भी ऑब्जेक्ट पे स्टैंडर्ड या कस्टम, तो जब आपका डेटा जाता है तो साथ में ऑर्गेनाइजेशन आईडी भी जाता है, अलॉन्ग विथ योर फॉर्म डेटा योर ऑर्गेनाइजेशन आईडी इज ऑल्सो ट्रांसफर्ड। और ये मैं दिखाऊंगा आपको प्रैक्टिकली, जब हम मतलब लॉग इन हिस्ट्री डाउनलोड करेंगे ना, तब आपको मिलेगा ये चीज। तो इस तरह से सेल्सफोर्स एक्चुअली डिस्टिंग्विश करता है कि कौन सा डेटा किसको बिलोंग करता है, और वो डेटा सिर्फ उसी को मिलता है। तो ये पॉसिबल नहीं है कि एक का डेटा दूसरे को मिलता है, ये कभी नहीं हो सकता। ठीक है, दिस ऑर्गेनाइजेशन आईडी इज द प्राइमरी की, ये है प्राइमरी की। ऑर्गेनाइजेशन आईडी जो होता है प्राइमरी की, मतलब उसको डेटाबेस में उस वैल्यू को बोलते हैं जो इंडिविजुअली डिस्टिंग्विश करती है हर चीज को, और जो कभी भी डुप्लीकेट नहीं होती है, उसको बोलते हैं प्राइमरी की। अगर डेटाबेस आप में से किसी ने पढ़ा है तो उसको प्राइमरी की का इंपॉर्टेंस पता होगा। या जनरल वर्ड में अगर मैं कहना चाहूँ तो रोल नंबर। देखो, एक क्लास में अक्षय नाम के 3 लोग हो सकते हैं, हो सकता है उनके तीनों के सरनेम भी एक जैसे हो, मान के चलो, लेकिन तीनों के रोल नंबर तो अलग होंगे, राइट। तो प्राइमरी की ऐसे नंबर को कहा जाता है जो इंडिविजुअली डिस्टिंग्विश करती है हर रिकॉर्ड को, और जो कभी डुप्लीकेट नहीं होती, राइट। तो यहाँ पर इस टेबल में ऑर्गेनाइजेशन आईडी ही प्राइमरी की होता है। तो जिस ऑर्गेनाइजेशन का डेटा है वो उसी को मिलेगा, कभी भी आपस में ये कहना चाहिए कि एक ऑर्गेनाइजेशन का डेटा दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को नहीं जाता है। ठीक है, सो बेस्ड ऑन दिस salesforce-database.com will decide कि कौन सा डेटा कहाँ पर आया है और किसको बिलोंग करता है, ये चीज होती है। अब ये था स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट के बारे में। अगर आप मुझसे पूछो कि सर कस्टम ऑब्जेक्ट है क्या, भले मैंने हायरिंग मैनेजर क्रिएट किया, आपने भी किया है, सेम नेम सब कुछ वैसा ही है, लेकिन कस्टम ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग टेबल्स बनते हैं। मेरा हायरिंग मैनेजर का कस्टम ऑब्जेक्ट अलग है, उसका टेबल अलग है, आपने भी क्रिएट किया है, तो वो टेबल आपको शेयर नहीं होगा, आपके लिए एक अलग टेबल बनेगा database.com पे। पोजीशन ऑब्जेक्ट अगर मैंने बनाया है, आपने भी बनाया, लेकिन क्योंकि कस्टम ऑब्जेक्ट है, इसके लिए आपका टेबल अलग होगा और मेरा टेबल अलग होगा। इसलिए चलो अब हम, क्योंकि बहुत डिटेल नॉलेज हासिल कर रहे हैं, अब एक और बात बताता हूँ। इसलिए कस्टम ऑब्जेक्ट क्रिएशन पे गवर्नर लिमिट है, स्टैंडर्ड पे नहीं है, क्योंकि स्टैंडर्ड तो एक ही जगह जाने वाला है ना, आपका अकाउंट मेरा अकाउंट एक ही जगह स्टोर होगा, आपका कॉन्टैक्ट मेरा कॉन्टैक्ट। लेकिन कस्टम ऑब्जेक्ट पे गवर्नर लिमिट है। कोई बता सकता है कितनी गवर्नर लिमिट है? हाउ मेनी ऑब्जेक्ट्स कस्टम ऑब्जेक्ट यू कुड क्रिएट? हाउ मेनी कस्टम ऑब्जेक्ट यू कुड क्रिएट? कस्टम ऑब्जेक्ट पे गवर्नर लिमिट्स हैं। In the free developer account, I could create maximum 400 custom object, क्योंकि ये डेटाबेस में जाके क्रिएट होने वाला है, इसलिए गवर्नर लिमिट है। अनलिमिटेड में 2000। स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट पे कोई गवर्नर लिमिट नहीं होती। देखो, तो कस्टम ऑब्जेक्ट पर ही क्यों गवर्नर लिमिट होती है? वो इसलिए क्योंकि स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट के जो टेबल्स है ना, वो पहले से ही क्रिएटेड है। मतलब जब आपने ये ऑर्ग बनाया और ये सब जो आपको मिला, अकाउंट, केस, कॉन्टैक्ट, तो ये आपके लिए क्रिएट नहीं हुआ, रादर ये चीजें database.com पे पहले से ही मौजूद थी, उसका एक लिंक बन के आपको आ गया। नाउ यू कुड ऑल्सो स्टोर समथिंग इनसाइड अकाउंट, समथिंग इनसाइड केस एंड कॉन्टैक्ट, लेकिन जिस वक्त आपने हायरिंग मैनेजर बनाया, तो आपको जो database.com पे जो कैपेसिटी मिली है, बाय द वे क्या कैपेसिटी मिली अपनी, क्या यहाँ चलो,
दिस इज योर डेटा, 5 MB फॉर डेटा एंड 20 MB फॉर है ना फाइल स्टोरेज। तो अभी तो 5 MB यूज कर रहे हैं अपन। तो व्हेन यू क्रिएटेड हायरिंग मैनेजर पोजीशन एंड कैंडिडेट, तो आप ये 5 MB का डेटा जो है ना, 5 MB स्पेस को यूज कर रहे हो, और उसमें जो भी डेटा आप स्टोर करने वाले हो वो यहाँ पे स्टोर होने वाला है। ऐसा है ये। तो बिकॉज ये इसके लिए ये अलग टेबल बनेंगे database.com पे, इसीलिए इस पर गवर्नर लिमिट इम्पोज की गई है कि जो हम डेवलपर और कभी जो यूज कर रहे हैं 400 मैक्सिमम, और अनलिमिटेड में 2000 आप क्रिएट कर सकते हो, उससे ज्यादा नहीं। तो गवर्नर लिमिट कस्टम ऑब्जेक्ट्स पे होती है, स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट पे नहीं होती है, क्योंकि स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट रेप्लिकेट नहीं होता है। जो एक बार बन गया है उसी में ऐड हो रहे हैं। आप हम सभी लोग अपने डेटा को वहीं स्टोर कर रहे हैं। हमसे पहले के लोगों ने भी वही किया है, उसके पहले के लोगों ने भी वही किया है, हमारे बाद वाले भी वही करने वाले हैं। तो बस ये टेबल का साइज बढ़ रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन हाँ, जब आप हायरिंग मैनेजर पोजीशन, कैंडिडेट, लोन बुक ऐसी चीजें बनाते हो, तो वो एक्चुअली database.com पे एक नया टेबल बनता है। इसीलिए उस पर गवर्नर लिमिट है कि भाई इसका एक रिस्ट्रिक्शन है, आप पूरा यूटिलाइज नहीं कर सकते। आप सब कुछ आपको दे देंगे तो बाकी लोग कहाँ जाएंगे? क्योंकि सेल्सफोर्स क्या है, शेयर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है, यहाँ कोई मोनोपोली नहीं चलती किसी की, राइट? तो इसलिए इस पे गवर्नर लिमिट्स होती हैं। आओ, तो ये थी कुछ डिटेल डिस्कशन इन सब चीजों के बारे में। आइए अब आगे बढ़ते हैं, अपन अपने टॉपिक पे वापस आते हैं, सिक्योरिटी पे। तो इस टॉपिक में हम काफी सारी चीजें पढ़ने वाले हैं। मैंने ये सब लिस्ट आउट करके रखा हुआ है कि सिक्योरिटी का ओवरव्यू दूंगा, लाइसेंस, प्रोफाइल्स, यूजर मैनेजमेंट, रोल हायरार्की, OWD, और करीब करीब इतनी सारी चीजें जो हम यहाँ देखने वाले हैं। सो मैंने जैसा बताया, इट्स अ बिट लेंथी टॉपिक, 2 हफ्ता करीब लगेगा मुझको, लेकिन जो चीजें हम यहाँ पढ़ रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनो मेरी बात, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। आपके ओवरऑल एडमिन इंटरव्यू का 50% पोर्शन यहीं पर मौजूद है। यहाँ पर ये जितने भी टॉपिक्स हैं, ये जितने भी टॉपिक्स हैं यहाँ पे, दिस इज योर 50%। ये पूरा पूरा अगर आप एडमिन का इंटरव्यू दे रहे हैं आगे चल के, तो आपको 50% जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो यहीं से पूछे जाएंगे, और जो बाकी का पढ़ा है आपने वो 50%। यानी इतना सारे टॉपिक पढ़ने के बाद में, कल हमने डिस्कस किया है कि हमने क्या क्या पढ़ा, इंट्रोडक्शन, रिलेशनशिप, वर्कफ्लो, प्रोसेस बिल्डर, यहाँ तक, ठीक है, और ये डेटा मैनेजमेंट को भी मिला देता हूँ मैं इसमें। ये है 50%, इतने सारे टॉपिक 50%, और बचा हुआ पूरा परसेंट 50% जो है वो आपका शेयरिंग एंड सिक्योरिटी है। तो इस टॉपिक की जो वेटेज है वो समझ लो बहुत ज्यादा है, इसलिए आपको एक एक चीज को बारीकी से समझना है, पूरी तरह से समझना है। अगर कोई भी चीज नहीं समझ में आ रही है तो आप क्वेश्चन रेज करिए, ठीक है? अगर कोई भी चीज, किसी भी तरह से छोटे सी छोटी बात अगर आपको कंफ्यूजन है दिमाग में, तो आप ना खामोश मत रहिए, आप क्वेश्चन रेज करें, क्योंकि जो चीजें हम पढ़ रहे हैं वो सच में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो अगर कोई भी बात समझ में नहीं आती है, और ये पूरे टॉपिक के दौरान आपको सभी को बीच में भी इंटरप्ट करने का पूरा हक है मेरे को, लाइक मैंने आपको कमांड दे रखी, सभी को कमांड दे रखी है, अगर आपको कोई चीज नहीं समझ में आ रही है तो आप प्लीज इंटरप्ट करो, ठीक है? पूछ सकते हैं आप, ऑफकोर्स पूछ सकते हैं। तो ये था आपको सिक्योरिटी के रिलेटेड थोड़ा सा मुझे बताना था जो। अब हम चलते हैं लाइसेंसेस की तरफ। लाइसेंसेस क्या होते हैं, प्रोफाइल्स क्या होती है, लाइसेंसेस की रिक्वायरमेंट क्या होती है। तो देखिए, एक चीज तो हमने देखा है कि लेट्स लेट्स कम बैक टू द ऑर्गेनाइजेशन। मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में वापस आता हूँ, सेटअप, एडमिनिस्टर और मैनेज यूजर्स। इसके बाद में मैं जाता हूँ यूजर्स के ऊपर में, ठीक है? तो इस वक्त जैसे कि मैं देख रहा हूँ कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन में कितने यूजर्स मौजूद हैं। तो देखिए, हम इस वक्त जिस हमने जब ये ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट किया, हमने इस ईमेल आईडी के साथ में ये ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट किया, एंड दिस इज अस। ये है हम, वी आर आल्सो वन ऑफ द यूजर। हम भी एक यूजर ही हैं जो इस ऑर्गेनाइजेशन को यूज कर रहे हैं। हमारे अलावा अभी तक वैसे हमने कोई यूजर क्रिएट नहीं किया है हालांकि, लेकिन हमारे अलावा यहाँ 3 यूजर और मौजूद हैं, ठीक है? एक है चैटर, दूसरा इंटीग्रेशन, और तीसरा सिक्योरिटी। 3 यूजर हमें यहाँ पे और नजर आ रहे हैं, और ये सभी के इसमें है। मतलब आपकी भी ऑर्ग में टोटल देखा जाए तो 4 यूजर्स हैं, जिसमें से एक आप खुद हैं। आपके अलावा 3 स्टैंडर्ड यूजर्स हैं, एक है चैटर, दूसरा इंटीग्रेशन, तीसरा सिक्योरिटी, ठीक है? अब इसके अलावा जब भी हमें ऑर्गेनाइजेशंस में, देखिए ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ 4 ही यूजर्स रहेंगे, ये तो 3 जो है आपके स्टैंडर्ड है, एक हम है। तो हमारी हर ऑर्गेनाइजेशन में काफी सारे लोग काम करते हैं ना, मल्टीपल यूजर्स होते हैं, मल्टीपल यूजर का एक्सेस होता है। और आपको याद हो, अगर हम काफी पहले व्हेन व्हेन वी आर डिस्कसिंग दिस लाइसेंसेस, अब एकदम पहले की बातें और आज थोड़ा सा आज आपस में रिलेट होंगी। जो हमने एकदम शुरुआत में पढ़ा था और जो हम आज पढ़ रहे हैं,
तो चीजें आपस में आज रिलेट होने वाली है। तो हमने जब पढ़ा था कि हम एंटरप्राइज और अनलिमिटेड की बात करते हैं, क्योंकि एसेंशियल और प्रोफेशनल तो ये SaaS पार्ट है। SaaS सिर्फ हमारे क्लाइंट्स के लिए होता है, तो ये दोनों एडिशन हमारे क्लाइंट यूज करते हैं। बट वी एज ए डेवलपर, एज एन एडमिनिस्ट्रेटर, या तो हम एंटरप्राइज एडिशन का सैंडबॉक्स पे काम करते हैं या अनलिमिटेड एडिशन के सैंडबॉक्स पे। तो यहाँ पे पर यूजर कॉस्टिंग चलती है। एक यूजर इज $150 फॉर द एंटरप्राइज एडिशन। फॉर द अनलिमिटेड लाइक इट्स $300 पर यूजर पर मंथ। ठीक है, तो मैंने कहा था कि जब से आपसे आपसे पूछें अगर बाय द वे कभी इंटरव्यू में कि आपने कौन से एडिशन पे काम किया है, तो यू नीड टू से कि फॉर फ्यू ऑफ द प्रोजेक्ट आई हैव लाइक वर्कड ऑन द एंटरप्राइज एडिशन एंड देन फॉर फ्यू ऑफ देम आई वर्कड ऑन द अनलिमिटेड। तो मैंने दोनों पे काम किया है। Like for one of the project I was onto the unlimited edition, and for one of the project I was working on enterprise edition. ये तो हो गया एडिशन के बारे में। अगर आपसे एनवायरनमेंट पूछे कि आप कौन से एनवायरनमेंट पे काम करते हैं, तो यू ऑलवेज नीड टू से दैट कि आई वाज वर्किंग ऑन द सैंडबॉक्स। हम हमेशा सैंडबॉक्स पे काम करते हैं, प्रोडक्शन पे कभी नहीं। सैंडबॉक्स क्या है, प्रोडक्शन क्या है, जब हम डिप्लॉयमेंट तक पहुंचेंगे तो ये और क्लियर हो जाएगा आपको। फिलहाल आपको टर्मिनोलॉजीज याद करनी है। वी ऑलवेज वर्क ऑन सैंडबॉक्स, वी नेवर 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 वर्क ऑन प्रोडक्शन। प्रोडक्शन पे कभी 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 भी काम नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये है एक यूजर की। अब मान के चलो कि मुझे अगर 10 यूजर क्रिएट करने हैं, तो अब 10 यूजर क्रिएट करने हैं, मेरी ऑर्गेनाइजेशन में 10 यूजर हैं, तो उसके लिए मुझे 10 लाइसेंसेस लेना पड़ेगा, और जो भी उसका पैसा लगेगा वो अलग बात। अब जो ये टर्म निकाला मैंने कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन में 10 यूजर है, मुझे 10 यूजर क्रिएट करने हैं, तो अब यूजर कब कैसे क्रिएट करते हैं, अब हम उस पर आ रहे हैं। तो वो शुरुआत में जो पढ़ा था हमने, अब हम एकदम लास्ट में जा रहे हैं, और अब हम बात कर रहे हैं आपके यूजर्स क्रिएशन के ऊपर। चलिए आते हैं। देखिए, सो व्हेनेवर वी वांट टू क्रिएट द यूजर, जैसे फिलहाल मेरी ऑर्गेनाइजेशन में एक मैं ही हूँ, 3 तो स्टैंडर्ड है वो छोड़ दो, लेकिन एज अ कस्टम यूजर हम ही है। हमारे अलावा भी और यूजर्स हमको क्रिएट करने हैं। अगर हमको और यूजर्स क्रिएट करने हैं तो उसके लिए एक बटन है यहाँ पे, न्यू यूजर नाम का। ठीक है, इसके थ्रू हम नए यूजर्स क्रिएट करने वाले हैं। बट इसके पहले कि आप यूजर क्रिएट करना सीखो, कुछ चीजें जो मैंडेटरी हैं जो आपको समझना है। ठीक है, आओ पहले उसके ऊपर, ये सारे डायग्राम्स मैं प्रोबेबली आज अपलोड कर दूंगा, यूजर क्रिएशन स्टेप्स। ठीक है, आओ इस डायग्राम को समझो। ये बहुत काम का डायग्राम है और करीब सारी बातें इसे समझ में आ जाएंगी आप। तो ये एक इंटरव्यू क्वेश्चन भी है कि व्हाट हैपेंस, आई मीन व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ क्रिएटिंग अ यूजर। जब भी आप यूजर क्रिएट करते हो तो यूजर क्रिएशन की स्टेप्स क्या होती हैं, यूजर क्रिएशन की स्टेप्स क्या होती हैं। चलिए आप ध्यान से सुनिए मेरी बात। देखो, मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है इसको एंड करने की। मैं बता रहा हूँ एक एक चीज को हम लोग बहुत बारीकी से समझेंगे, क्योंकि मैं जानता हूँ इस टॉपिक का वेटेज क्या है। मैं बताया ना, 50% ऑफ द क्वेश्चंस ऑफ योर इंटरव्यू विल बी बेस्ड ऑन दिस टॉपिक ओनली। हो सकता है आपको एक क्वेश्चन मिले रिलेशनशिप पे, 2 क्वेश्चन मिले, 1 या 2 क्वेश्चन आपको वर्कफ्लोज और प्रोसेस बिल्डर पे पूछे जाएं, 1 या 2 क्वेश्चन आपको लाइक एनालिटिक्स पे पूछे जाएं, 1 या 2 क्वेश्चन आपको डेटा माइग्रेशन पे पूछे जाएं, लेकिन सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आपको इसी पे पूछे जाएंगे, सिक्योरिटी पे। इसलिए एक एक चीज को, और मैं असाइनमेंट्स भी देने वाला हूँ कुछ टॉपिक पे, 1 या 2 टॉपिक है जिस पर मैं असाइनमेंट्स देने वाला हूँ, जो आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। ठीक है, चलो सो एक एक चीज को ध्यान से समझो। जब भी हम यूजर क्रिएट करते हैं, ठीक है, यूजर क्रिएट करने के लिए देयर आर 3 स्टेप्स, 3 स्टेप्स हैं, जिसमें 2 तो बिल्कुल मैंडेटरी है। मतलब whenever we wanted to create a user, the first step is to assign him a license. यूजर को एक लाइसेंस देना पड़ता है। ठीक है, सेकेंड, assign him a profile, and third, assign him a role. So whenever we wanted to create user inside the organization, there are 3 steps. Assign, give the user one license, give the user one profile, and give the user one role. ठीक है, 3 चीजें हैं, assigning a license, assigning a profile, assigning a role. Now out of these 3 things, assigning a license and profile is mandatory. Whenever we wanted to create a user, we must give him a license and we must give him a profile. We must assign him a license. It's a mandatory thing. Without assigning a license, without assigning a profile, you can't create a user. Role is something which is optional. Without even giving the role, you could definitely create the user. And even after creating the user, आप उसको role दे सकते हो चाहे नहीं दो,
चलता है। हालांकि स्टेप में 3 स्टेप होती हैं, गिव हिम अ लाइसेंस, गिव हिम अ प्रोफाइल, गिव हिम अ रोल। आउट ऑफ दीज 3 थिंग्स, आउट ऑफ दीज 3 थिंग, ये 2 चीजें मैंडेटरी है। दीज 2 थिंग्स आर मैंडेटरी। While creating a user, we must give him a license, we must assign him a profile. The third is optional. Either you could give him a role, without giving a role आप यूजर क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, चलो अब देखते हैं। तो अब ये लाइसेंस की बात निकली, तो अब एक एक चीज, पहले हम लाइसेंस समझेंगे, फिर हम प्रोफाइल समझेंगे, रोल क्योंकि ऑप्शनल है इसे हम बाद में समझेंगे। तो हम किस तरह से जाने वाले, मैं आपको रोड मैप बताता हूँ। मैं आपको लाइसेंस का ओवरव्यू दूंगा आज, कल मैं आपको प्रोफाइल का ओवरव्यू दूंगा। आज क्या दिन है, थर्सडे फ्राइडे, ठीक है। इसके बाद हम रुक जाएंगे, रोल अभी हम नहीं पढ़ेंगे। मंडे को हम क्या करेंगे, बिकॉज 2 मैंडेटरी चीजें हमें पता चल चुकी है कि लाइसेंसेस क्या होते हैं, ये आज हमें थर्सडे को पता चल जाएगा। फ्राइडे को हमें पता चल जाएगा कि प्रोफाइल क्या है। जब हम ये 2 चीजों से क्लियर हो जाएंगे, तो मंडे के दिन हम फिर क्या करेंगे, हम एक यूजर क्रिएट करेंगे। ठीक है, एक और एक से ज्यादा, एक्चुअली हम 4 यूजर क्रिएट करने वाले हैं लाइसेंस के अकॉर्डिंगली। अब मुझे पता है आपको पता चल जाएगा, तो हम 1 नहीं 2 नहीं 4 यूजर्स क्रिएट करेंगे। ठीक है, हम 4 यूजर्स क्रिएट करेंगे, और यूजर्स क्रिएट करने के बाद फिर हम कुछ और चीजें पढ़ेंगे। उसके बाद हम रोल पे आने वाले हैं, रोल भी देंगे, चारों को रोल देंगे, लेकिन अभी नहीं, बात में। ठीक है, तो इस तरह से हम एक एक करके स्टेप में देखेंगे। सबसे पहली चीज लाइसेंसेस क्या है ये समझते हैं। देखो यार, हर यूजर को लाइसेंस होता है, बिना लाइसेंस के कोई यूजर नहीं क्रिएट हो सकता। अगर ये 4 यूजर, मतलब एक मैं और ये 3 और पड़ोसी, अगर ये ऑर्गेनाइजेशन में मौजूद है, इसका मतलब इन सब के पास लाइसेंस है। अगर आपको इनका लाइसेंस चेक करना है, तो आप लाइसेंस के लिए प्रोफाइल चेक करो। ठीक है, मैं देखो एक एक को ओपन करता हूँ। ठीक है, मैंने चारों की प्रोफाइल डिमांड करी। प्रोफाइल के अंदर मुझे इनके लाइसेंस, यूजर लाइसेंस कौन सा नजर आ रहा है, सेल्स फोर्स लाइसेंस है। सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के पास कौन सा लाइसेंस है, सेल्स फोर्स लाइसेंस। ठीक है, चैटर फ्री यूजर नाम से एक यूजर है, उसके पास कौन सा लाइसेंस है, चैटर फ्री। लाइसेंसेस के टाइप में बताने वाला हूँ, डोंट वरी, जिसमें आपको बता देखने का तरीका सिखा रहा हूँ कि आपको अगर यूजर को कौन सा लाइसेंस दिया है वो देखना है, तो उसकी प्रोफाइल पे जाओ। ठीक है, जैसे सिस्टम, ये जो है सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर यूजर, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर यूजर की प्रोफाइल पे आने के बाद मुझे पता चला कि इसके पास सेल्सफोर्स लाइसेंस है। चैटर यूजर की प्रोफाइल पे आने के बाद मुझे पता चला कि इसके पास चैटर फ्री लाइसेंस है। एनालिटिकल क्लाउड इंटीग्रेशन यूजर पे आने के बाद पता चला कि इसके पास एनालिटिकल क्लाउड इंटीग्रेशन यूजर नाम का लाइसेंस है। ठीक है, सिक्योरिटी यूजर के पास में इंटीग्रेशन यूजर, एनालिटिक्स क्लाउड इंटीग्रेशन यूजर, उसका लाइसेंस है। तो ये अलग अलग लाइसेंसेस। अब अगर आपको ये जानना है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कितने अलग अलग तरह के लाइसेंसेस होते हैं, ठीक है, चलो वो भी हम देखते हैं। ओके, मैनेज यूजर से हट जाते हैं। अच्छा, ये लिखा हुआ है, डोंट वरी, एवरीथिंग हैज बीन रिटन। आपको देखना है, ये है नेविगेशन। ठीक है, डोंट वरी, एवरीथिंग इज रिटन इनसाइड योर थ्योरी। बस मैं क्या थ्योरी से नहीं पढ़ाता हूं, आपको पता है। गो टू कंपनी प्रोफाइल, कंपनी इंफॉर्मेशन में जाइए। तो यहां तक तो मैं आपको लाके दिखा चुका हूं। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको ऑर्गेनाइजेशन आईडी दिखाया, आपका डेटा और फाइल स्टोरेज दिखाया। ठीक है, आपका एडिशन कौन सा, डेवलपर एडिशन, आपका सर्वर नंबर कौन सा, AP27। इसी पेज पे जरा सा नीचे आप स्क्रॉल करें, आपको दिखेंगे यूजर लाइसेंसेस। देखिए, ठीक है, पूरी लिस्ट पे चलते हैं, गो टू लिस्ट, ये है पूरी लिस्ट, ये हैं सारे लाइसेंसेस। इतने तरह के लाइसेंसेस होते हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, और ये हैं सबके नाम, सेल्सफोर्स लाइसेंस, एक्सटर्नल ऐप लॉगिन, सेल्सफोर्स प्लेटफॉर्म, कस्टमर कम्युनिटी, ठीक है, एक्स और वर्क.com, ये दीज और अदर टाइप ऑफ लाइसेंसेस। ठीक है, चैटर फ्री लाइसेंस देखिए आप। ठीक है, ये है सारे लाइसेंसेस, ये सारे लाइसेंसेस हैं। चलो अब कुछ बातें पढ़ते हैं लाइसेंस के बारे में। देखिए, सेल्सफोर्स लाइसेंस टोटल कितने हैं, कितने कंज्यूम हो चुके हैं, और कितने बचे हुए हैं। ठीक है, अगर कोई एक्सपायरेशन डेट है तो वो भी, हालांकि लाइसेंस की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती है। ठीक है, किसी भी लाइसेंस में नहीं मिलेगी आपको, देख लो। सेल्सफोर्स लाइसेंस, ये लाइसेंस, ये सबसे पावरफुल लाइसेंस होता है। ठीक है, इन सारे लाइसेंसेस में से, इन सारे लाइसेंसेस में सबसे बड़ा, सबसे पावरफुल लाइसेंस है सेल्सफोर्स लाइसेंस। ये लाइसेंस जिसके पास होगा, ठीक है, जैसे आप ये एक लाइसेंस यूज है, भाई हमको डेवलपर ऑर्ग में 2 ही लाइसेंस मिलते हैं,
डेवलपर ऑर्ग में हमको कितने लाइसेंस मिलते हैं? 2 ही मिलते हैं, ठीक है, 2 ही लाइसेंस मिलते हैं हमको डेवलपर ऑर्ग में। एक कंज्यूम हो चुका है तो एक बचा है, तो एक कहाँ कंज्यूम हुआ है? अभी तक तो हमने कोई यूजर क्रिएट नहीं किया है। सो भले ही हमने कोई यूजर क्रिएट नहीं करा है, लेकिन जो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर प्रोफाइल है, ये यूजर जब ये ऑर्गेनाइजेशन बना इस आईडी के साथ, तो इस यूजर को सेल्सफोर्स लाइसेंस दिया जा चुका है। सेल्सफोर्स लाइसेंस जिसके पास है वो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर कहलाता है और उसके पास सारे राइट्स होते हैं, ठीक है। ये लाइसेंसेस के बारे में जब मैं आपको बताऊंगा, यहाँ लिखे हैं सेल्सफोर्स लाइसेंस, उसका एक और नाम है फुल कॉपी लाइसेंस, फुल लाइसेंस या स्टैंडर्ड सेल्सफोर्स लाइसेंस। टोटल कितने अपने पास? 2, जिसमें से एक कंज्यूम हो चुका है। जिसके पास ये लाइसेंस है, इट विल ग्रांट एक्सेस ऑन ऑल द फीचर्स इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग स्टैंडर्ड एंड कस्टम फंक्शनैलिटीज। जिसके पास ये लाइसेंस है उसके पास सारा कंट्रोल होता है। तो सबसे पावरफुल लाइसेंस होता है आपका सेल्सफोर्स लाइसेंस। सबसे पावरफुल लाइसेंस जो है वो है आपका सेल्सफोर्स लाइसेंस, ठीक है। इसके अलावा भी और लाइसेंसेस हैं। उसके अलावा फिर जो है अब पावर के हिसाब से नहीं बढ़ते हम लोग। 2 कंसेप्ट है, इंटरनल और एक्सटर्नल लाइसेंस, ठीक है। इंटरनल यूजर और एक्सटर्नल यूजर। तो ये क्या कंसेप्ट है, ये मैं प्रोबेबली कल लेने वाला हूँ। अभी तो सिर्फ मैं आपको लाइसेंसेस का ओवरव्यू देख रहा हूँ, ठीक है। तो ऑल टुगेदर वी वर हैविंग 2 लाइसेंसेस सेल्सफोर्स के। 2 ही मिले क्योंकि ये फ्री डेवलपर अकाउंट है, यहाँ 2 ही मिलता है। और उसमें से एक कंज्यूम हो चुका है, एक ही बचा है हमारे पास, ठीक है। दूसरा हमें एक लाइसेंस और काम का है, वो है प्लेटफॉर्म यूजर, क्योंकि ये भी एक इंटरनल यूजर लाइसेंस है। ये इंटरनल यूजर क्या होते हैं, एक्सटर्नल क्या होते हैं, मैं कल अच्छे से समझाने वाला हूँ। और कल मैं आपको जो मतलब कम्युनिटी क्लाउड है वो भी मैं बनाने वाला हूँ, मतलब आपको बताने वाला हूँ मैं कम्युनिटी क्लाउड के बारे में काफी कुछ बताने वाला हूँ। मतलब कल का भी थोड़ा सा हमारा इंटरेस्टिंग लेक्चर ही रहने वाला है, जहाँ पे आप सीखोगे कि कैसे अपने ओन वेब पेजेस बनाना, मतलब जिसको एक्सपीरियंस क्लाउड बोला जाता है सेल्सफोर्स का, है ना। एक्सपीरियंस क्लाउड मैंने कहा था काफी पहले जब हमने पढ़े थे इस चीज को। सो मैंने कहा था कि देखिए बहुत सारे अलग अलग क्लाउड्स होते हैं, सेल्स क्लाउड, सर्विस क्लाउड, मार्केटिंग क्लाउड, ऐप क्लाउड, डेटाबेस.com, कोलैबोरेशन क्लाउड जिसको चैटर भी बोलते हैं। एक और क्लाउड होता है कम्युनिटी क्लाउड, ठीक है, जिसको एक्सपीरियंस क्लाउड भी बोला जाता है, ठीक है। तो कल हमारा डिस्कशन इसके ऊपर होने वाला है, मतलब आपको बताने वालों में किस तरह से क्लाउड सेटअप करना, एक्सपीरियंस, किस तरह से कम्युनिटी सेटअप करना, कितनी अलग अलग तरह की कम्युनिटी होती है। वैसे देखा जाए तो थ्योरी में लिखा है, कल मैं रिवाइज करने वाला हूँ, सो डोंट वरी। एक जगह मैंने कहीं तो भी लिखा है इस थ्योरी में। एक जगह मैंने लिखा है, कहीं तो भी लिखा है मैंने, थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा प्रोबेबली मुझको, बट समवेयर आई हैव रिटन दिस कि कम्युनिटीज के कितने टाइप होते हैं। हाँ, कम्युनिटी 3 तरह की होती है, पार्टनर्स, कस्टमर, एम्प्लॉयज। तो कल हम डिस्कशन करने वाले हैं इसके ऊपर, सो डोंट वरी। 3 तरह की कम्युनिटी होती है, पार्टनर्स, कस्टमर एंड एम्प्लॉयज। चल आगे बढ़ते हैं। यस, ठीक है। तो कल एग्जैक्टली हम देखेंगे कि इंटरनल और एक्सटर्नल लाइसेंसेस के बीच में क्या फर्क है, इंटरनल यूजर क्या होता है, एक्सटर्नल यूजर क्या होता है। तो सेल्सफोर्स के अलावा एक और लाइसेंस है जो हमारे को काम में आने वाला है, वो है प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म लाइसेंस पूरे जो मिले हमको वो 3 लाइसेंसेस मिले हैं। उसमें से एक भी यूजर ऐसा कोई कंज्यूम नहीं हुआ है। अभी मैंने आपको चारों यूजर्स बताए, कोई भी यूजर ऐसा नहीं है जिसके पास ये लाइसेंस है। तो बिकॉज ये कंज्यूम नहीं हुआ, इससे सारे पूरे के पूरे 3 लाइसेंसेस अवेलेबल है हमारे पास। उसके अलावा अगर आप चैटर यूजर को देखें तो चैटर टोटल 5000 लाइसेंसेस हैं अपने पास। 5000 चैटर यूजर्स हम क्रिएट कर सकते हैं। एक ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है। कहाँ यूजर है? ये है चैटर यूजर, ये आपका चैटर यूजर। इसके पास कौन सा लाइसेंस है? देखो आप, इसके पास में कौन सा लाइसेंस है? चैटर फ्री लाइसेंस है। तो एक लाइसेंस चैटर फ्री कंज्यूम हो चुका है। 4999 लाइसेंसेस हैं अपने पास। चैटर एक्सटर्नल 500 है, एक भी कंज्यूम नहीं हुआ है, ठीक है। ऐसा इस तरह से, तो ये है आपका लाइसेंसेस का ओवरव्यू। तो लाइसेंस सबसे पहली चीज है, जब भी हम यूजर क्रिएट करेंगे तो उसे लाइसेंस देना पड़ेगा। अब इसमें 2 तरह का कंसेप्ट है, इंटरनल यूजर और एक्सटर्नल यूजर। तो ये एग्जैक्टली क्या है मैं कल लेने वाला हूँ इस चीज को, ठीक है। अभी प्लीज कोई एब्सेंट मत रहो, जब तक ये सिक्योरिटी ना खत्म नहीं होता है, कोई एब्सेंट मत रहो यार। और अगर किसी वजह से भी एब्सेंट होते हो तो फिर तुरंत वीडियो देखो, अगले दिन आने से पहले वीडियो देखो,
ठीक है, वरना अगले दिन का टॉपिक नहीं समझेगा। इसलिए ये कंटिन्यूटी बहुत जरूरी है अभी, जब तक ये आपका सिक्योरिटी चल रहा है। ठीक है, चलो कल इसके आगे देखेंगे, आप धीरे धीरे पढ़ेंगे इसको।